Hello my dear student, welcome to this session in chapter 7, that is structural organization in animals. Today we are going to start with next type of tissue. Lastly, we have completed with epithelial tissue as well as connective tissue. In that we have learned epithelial tissue made up of simple or compound epithelium and connective tissue made up of loose or dense connective tissue. Today we are going to start with other two, that is muscle tissue and neural tissue. Muscle tissue is further divided into three types: smooth, striated and cardiac. So let us start with muscle tissue. Muscles, they are very important in every organism's body, especially if we talk about humans. Due to muscles, the movement is possible, and without movement, no activity is further run. So muscle has its own importance. Each muscle is made up of long cylindrical fibers which are arranged in a parallel fashion. These fibers, they are composed of numerous fine fibrils. So fiber से भी छोटा जो thread like structure होता है उसको हम fibril बोलते हैं. And here myo word is concerned with muscles. So ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स. एंड मसल फाइबर्स, देयर फंक्शन इज टू कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो शॉर्टन्ड होंगे, देयर लेंथ विल बी बिकमिंग शॉर्टन्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन. जब भी वो एक्साइट किए जाते हैं, जब भी उनको कमांड दिया जाता है मसल्स को, वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देते हैं और उसके बाद रिलैक्सेशन होता है. दैट मीन्स अगेन दे लेंथन and they return to their original position, that is uncontracted state. तो इस तरह से, और ये coordination के साथ movement चलती है and it is coordinated with the nervous system. Their action moves the body to adjust the changes. So in this way their activity is very important, and especially their types are also, we have discussed earlier, their types are also present and they are running in a coordinated manner. Their action moves the body to adjust the changing in environment. Even they maintain the position of various parts of the body. So in general, muscles play a very active role in the movement regarding the body. And as we have discussed earlier, they are of three types. They are skeletal, smooth muscles and cardiac muscles. Let us here talk about striated muscles first. So striated muscles are also known as skeletal muscles because they are closely attached to skeletal bones, and the movement of bones, that is due to them, and they are moving according to our will. हम जैसा चाहें वैसा उनको मूव कर सकते हैं. So in a typical muscle such as biceps, the striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से भी इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी. एंड कवरिंग इज प्रेजेंट विच इज़ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड सभी बंडल्स को, मसल बंडल्स को एक साथ कवर करके रखती हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, दैट मीन्स दे कैन बी मूव्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल. हम हमारे कॉन्शियसनेस के साथ उसका मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं. ये एक ही ऐसी मसल्स हैं जिनको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. बाकी की दो, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, दे आर ऑटोमेटिकली रन. उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. दे आर नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू आवर विल. दे आर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स. नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हम देख सकते हैं यहाँ पे मसल टिश्यूज शो की हैं. ए डायग्राम इज शोइंग स्ट्राइटेड मसल्स. आप देख सकते हो एकदम इसके ऊपर धारियाँ जैसी स्ट्रक्चर दिखता है, जो धारियाँ बनी हुई हैं. जैसे आप टाइगर का स्ट्रक्चर देखते हो, टाइगर के बॉडी के ऊपर पूरी बहुत सारी धारियाँ होती हैं, लाइंस होती हैं, एक पैटर्न ऑफ लाइंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस. तो यहाँ पे भी मसल टिश्यू के ऊपर, स्पेशली स्केलेटल मसल्स, उसके ऊपर स्ट्राइएशंस दिखते हैं. एंड सिमिलरली थोड़े से अलग स्ट्राइएशंस हमको कार्डियक मसल्स में भी दिखते हैं, और इनके डायग्राम बहुत ही टिपिकल हैं. आपको डायग्राम के ऊपर से भी आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कौन सी मसल्स हैं. बी डायग्राम इज कंसर्न्ड विथ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स का आइडेंटिफिकेशन है कि इनके दोनों एंड्स एकदम पॉइंटेड होते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है.
एंड लास्टली कार्डियक मसल्स का है जंक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स आर देयर, और इसके स्पेशल फीचर है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो हम बाद में बात करेंगे। सो इस स्ट्रक्चर में आपको मसल फाइबर्स दिखाए हैं, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं, ये स्ट्राइटेड मसल्स का डायग्राम है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मायोफाइब्रिल्स आपको दिखाए हैं, एंड इवन द स्ट्राइशंस आर वेरी क्लियर। देन इट हैज़ न्यूक्लियस, a very prominent nucleus is there. So in this way, this type of structure, it is related to the skeletal muscles. Now let's see this diagram. It is concerned with the diagram of smooth muscles. इनको हम visceral muscles भी बोलते हैं, and these are found mostly at the visceral organs, at the surface of visceral organs for their movement, और ये involuntary muscles हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे भी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ऑलमोस्ट राउंड और ओवल शेप न्यूक्लियस इज देयर, एंड दीज आर टेपरिंग एंड्स, या इनको हम बोलते हैं पॉइंटेड एंड्स, और यहाँ पे कोई भी स्ट्राइशंस आप नहीं देख सकते। दिस डायग्राम इज शोइंग फॉर कार्डियक मसल्स, दीज आर फाउंड ऑन द हार्ट वॉल, एंड इट हैज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बता रही हूँ, आपको लिखना बुक के अकॉर्डिंग ही है, बट समझने के लिए, याद करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एंड इवन यहाँ पे भी स्ट्राइशंस आप देख सकते हो, न्यूक्लियस आर प्रोमिनेंट, एंड बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। देन जंक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स आर ऑल्सो डिमार्केटेड हियर। सो इन दिस वे, दिस इज़ द पिक्यूलियर मसल विच इज़ ओनली एंड ओनली फाउंड ऑन हार्ट वॉल। नाउ लेट अस डिस्क्राइब द अदर 2 टाइप ऑफ मसल्स। नाउ सेकेंडली वी विल टॉक अबाउट स्मूथ मसल फाइबर। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको डायग्राम में बता दी हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर बुक। स्मूथ मसल फाइबर्स दे टेपर एट बोथ दी एंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म, एंड डू नॉट शो स्ट्राइशंस। ये दोनों ही इसकी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। Then cell junctions, they hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. Then the wall of internal organs like blood vessels, उनकी जो अंदर की दीवारें हैं उस पे स्मूथ मसल्स होंगे, स्टमक की वॉल्स पे होंगे, इंटेस्टाइन की वॉल्स पे होंगे। सो ऑल ऑफ देम दे कंटेन स्मूथ मसल्स। दीज आर इनवॉलेंटरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये अपने इच्छा से नहीं हम इनको मूव कर सकते, दे आर नॉट रन अकॉर्डिंग टू आवर विल, इसलिए हम इनको इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। सो we usually are not able to make it contract merely by thinking about it, and as we do not do with skeletal muscle. This is the one of the differentiating point. Then lastly we'll talk about cardiac muscles. It is a contractile tissue which is present on only in heart. मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, और ये इसका स्पेशल फीचर है. Then cell junctions, they fuse the plasma membrane of cardiac muscle cell and make them stick together. यहाँ पे connective tissue की layer नहीं है. Then communication junctions which are known as intercalated disc at some fusion points allow the cells to contract as a unit. ठीक है, that is when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. कनेक्शन होता है एक दूसरे का, इसीलिए हमने इसको बोला है इंटरकैलेटेड डिस्क, क्योंकि एक मैसेज एक सेल के पास आएगा तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा दूसरे को, और इस तरह से सब एक साथ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बुक आपके इस चैप्टर में नहीं दिया है, बट आप लेटर ऑन जो ह्यूमन एनाटॉमी वाले चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आएगा. बट अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, इनका बहुत स्पेशल फंक्शन होता है. देयर मूवमेंट इज़ ऑल्सो रिदमिक. और अगर आपने सोचा हो तो जब से हमारी हार्ट बीट इन द मदर्स वूम, व्हेन वी आर इन द मदर्स वूम, तब से हार्ट बीट शुरू होती है. कब तक चलती रहती है? कंटिन्यूसली, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती. सो इट इज़ अ कंटिन्यूसली मूविंग मसल. तो ये बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है इस मसल टिश्यू का. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज न्यूरल टिश्यू. इट इज़ एक्चुअली कंसर्न्ड विद नर्वस सिस्टम. एंड न्यूरल टिश्यू, दे एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म.
आपको मालूम ही है, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, किसी भी एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और मेनली हमको मालूम है कि ब्रेन कंट्रोल करता है। सो ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, और इनके पूरे नर्वस सिस्टम को जो भी टिश्यूज़ बनाते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यू। ओके, सो इट्स यूनिट इज़ न्यूरॉन। आपको मालूम होगा, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में इसके बारे में पढ़ा ही है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। सो न्यूरॉन्स, दे आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम विच आर एक्साइटेबल सेल्स। इनको कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो वो एक्साइटेड पोजिशन में आके एक्टिविटी करते हैं। एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, दे प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये न्यूरल टिश्यू। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एज वेल एज न्यूरोग्लिया। सो इस टिश्यू के बारे में आप फर्दर आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर जो न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड है उसमें आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। बट हियर वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma membrane. And that's why due to the chemical exchange, the signals, they are transmitted from one part of the body to another and from one neuron to another neuron. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम की मदद से समझाऊंगी। So students, let's see with the help of diagram. Just we want to understand the structure of this neural tissue. It is also known as neuron. Now if we see the structure is divided into actually two parts, or we can say like that कि neuron it contains two parts. सबसे पहले सेल बॉडी जो सेंटर मोस्ट पोर्शन में है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसके अंदर न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स हैं, वो इसके प्रोसेसेस हैं जो हम बोल सकते हैं ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड दिस सेल बॉडी इट कंटेन्स न्यूक्लियस जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, और सेकेंड पार्ट है इसका टेल जिसको हम बोलेंगे एक्सोन। तो ये बिल्कुल पिक्यूलियर स्ट्रक्चर है। एंड ऑन द मेन सेल बॉडी देयर आर मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज डेंड्राइट्स। मेनली अगर हम इसका फंक्शन देखें तो डेंड्राइट्स दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द नियर बाय न्यूरॉन एंड एक्सोन्स दे गिव द सिग्नल्स। ठीक है, एक लेता है सिग्नल, दूसरा देता है नेक्स्ट न्यूरॉन को। एंड द एक्सोन इज कवर्ड विद अ माइलिन शीथ विच गिव्स इंसुलेशन। इसके भी डिटेल में हम इसको डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, इनकी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है जो न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में आपको हेल्प करेगी। ओके, लेट्स रिवाइज ऑल द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मसल टिश्यू। फर्स्ट डायग्राम इज कंसर्न्ड विथ स्मूथ मसल्स, आपको मालूम चल ही गया होगा। देन द मिडिल वन दैट इज कंसर्न्ड विथ स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी एक्टिविटी है, हम हमारे विल के अकॉर्डिंग उसको मूव कर सकते हैं। एंड लास्टली इट इज़ शोइंग कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, and cardiac muscles are specially found only and only on the wall of heart. So these structures you have to draw in your class work. आपको जो भी डायग्राम इजी गोइंग लगे वो आप ड्रॉ कर लेना, बट इनके डायग्राम्स ड्रॉ करने कंपलसरी हैं। देन दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन विच आई हैव शोन यू हियर। इसमें सभी को इंडिविजुअली पॉइंट वाइज उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका लोकेशन, तो इस तरह से पॉइंट वाइज अगर आप याद करोगे तो छोटे छोटे MCQs या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प रहेगा। सो ऐसे ही रटना नहीं है, उसको समझ के याद करना है और फिर एक बार बिना देख के उसको आपकी क्लास वर्क में नोट डाउन करना है। ओके, लेट्स चेक योर मेमोरी. I have given here a question. What are the main differences between smooth muscles, skeletal muscle and cardiac muscles? So here the points are given. Comparing, सबसे पहला जो comparison है वो उसके structure से related है. Spindle shaped cells, striated unbranched cell and lastly striated branched cells. ठीक है. Then उसकी लोकेशन के ऊपर है, दे आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऑन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड ऑन हार्ट। तो इस तरह से उसकी लोकेशन के ऊपर है। देन उसकी लास्ट पॉइंट उसकी एक्टिविटी से कंसर्न है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी एक्शन, देन स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी एक्शन
एंड कार्डियक मसल्स में कंट्रोल हार्ट्स पंपिंग विच इज़ ऑल्सो इनवॉलेंटरी। सो बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इवन आप डायग्राम भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। सो मोस्टली सभी तरह से आपको लर्निंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना है। नाउ ऑन दिस पेज आई हैव शोन यू हाउ टू राइट अबाउट न्यूरल टिश्यू। इसके बारे में हमने डिटेल अच्छे से समझ लिया है, बट स्टिल किस तरह से नोट डाउन करना, यहाँ पे पैराग्राफ वाइज नोट डाउन किया है, बट अगर आप चाहो तो उसको उसी तरह से मैंने जैसे बताया स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, इस तरह से पॉइंट्स आप कन्वर्ट करके नोट डाउन कर सकते हो। दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। एंड लास्टली आई एम शोइंग यू द डिटेल ओरिजिनल पिक्चर विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और किस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है वो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मेनली अगर आपने डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफी और उसमें भी साइंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर देखी हैं तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन करते हैं या न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं तो इस तरह का ओरिजिनल पिक्चर्स दिखते हैं। और इवन जैसे हमने डिस्क्राइब किया इसका स्ट्रक्चर, the body is divided into or the structure is divided into two parts. First is cell body, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, and it has a prominent nucleus, सबसे सेंटर में न्यूक्लियस है। साथ साथ इसके जो सेल प्रोसेसेस हैं, छोटे प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं डेंड्राइट, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन द एक्सोन, दैट इज़ द अदर लॉन्गर न्यूरॉन विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। एंड पहले भी हमने बात की थी, न्यूरोग्लिया इज प्रेजेंट एंड इट इज़ कवरिंग द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस टिश्यू। सो इन दिस वे वी हैव completed two tissues today, that is muscular tissue and lastly the neural tissue. So in this way we have completed today all the different type of animal tissues. Hope you liked it. Please revise all the things, note down all the things in your classwork and enjoy reading, learning. Take care. Bye bye students.